This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। आज का बाइबल पठन मार्कुस अध्याय 8। 4,000 को भोजन। उन्हीं दिनों एक दूसरे अवसर पर the way we read matters. We should read so that the meaning is properly conveyed. Reading itself is an art. In the early church, the Anglican church or the English church, the preacher is not allowed to preach in any other way except either by reading the original text or by his life example. These are the only two methods of teaching that the early church, or for that matter, any world-renowned academic institute knows. But these days, the original text is always often diluted and the meaning has been misinterpreted, misrepresented. That is the very reason why the knowledge, understanding of a particular subject in good olden days is different from the kind of teachings and learnings of the same subject that is being taught and learned today, because the teaching methods have been drastically changed, and it is considered that reading in the classroom is uh, forbidden, asur. It's not so. Reading is a cognitive ability. When the teacher reads that original text, the children will learn how to pronounce. They will learn about punctuation. They will learn about syntax. They will learn about many other things. Of course, the teacher will explain the meaning, but quite often, even the elderly management of the institutes uh, consider reading of the original text as inferior method of teaching, which is very, very unfortunate. There is no substitute to reading. The habit of reading is lost almost. Unless you are a good reader, you cannot be a good writer. Unless you are a good listener, you can never be a good speaker. Eloquent speakers are born from listening ear. Successful writers are born from ability to read. Reading is considered as the most inferior way of teaching, but to me, this is the best way of teaching, so that such teaching method will yield all-round development of the student, and the originality of the text is preserved so long as the material presented in the classroom is original material, authentic, and authoritative work. For example, there is no substitute to the book classical work of Maccabe when we teach heat transfer. Likewise, when we teach heat transfer, there is no substitute to Senjal. For example, when we teach physical chemistry, there is no substitute to uh, Samuel Glaston, whether it is electrochemistry or nuclear chemistry or chemical equilibrium or chemical kinetics. All other books are derivatives of the original work of Professor Samuel Glaston, who has been the scientific consultant to the Atomic Energy Commission US. Many other physical chemistry textbooks have appeared following the work of Samuel Glaston, but the original work should be acknowledged, and the student should also be made aware of the native works. There is no substitute
to learning any subject in mother tongue, means in the preparing the books of the native authors, Indian authors, for example, for Indian students. But the original references, original works should be read in the classroom as far as possible so that the readers will have a feel of how science has been practiced in those days, how scientific writing was then, and how it has got diluted. I do not say degraded, rather diluted these days. So there is no substitute to reading the original text. That is why this practice of reading the Bible is still continuing in the church, like reading the Vedas, reading the Bhagavad Gita, reading the Quran in the mosque. We need to follow much from religion when we teach science, because after all, science and religion are both a quest for seeking the truth. Moving forward, मार्कुस अध्याय 8, 4000 को भोजन। उन्हीं दिनों एक दूसरे, again we need to give pass where it need to be given. उन दिनों एक दूसरे अवसर पर, means on some other occasion, एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई. This is how the teacher teaches in the class. Unless this content is presented before the students, how they will know the significance of punctuation, how they will learn to read, to understand, to comprehend, how will they generate interest in reading. The teacher should teach by his own life example how fluent he is in teaching, or follow the original text. उनके पास खाने को कुछ नहीं था. यीशु ने अपने same here. Really, dear friends, these days, what to say? Adversity is denied. Religion is understood in an entirely wrong way. If God were to be there, if God were to be present, if God were to love me, why should I go hungry? Why should I run with empty purse? If Jesus Christ were to go through hunger, no preacher is an exception. உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடம் கொண்டுங்கள், நானும் உலகத்தின் ஜெயித்தேன். In the world you will have tribulation, yet do not lose heart. I have overcome the world. If I were to save the riches that God has given me, I will not have any dearth of resources, and I can live on the interest that I earn by saving what all I have received from the sovereign hands of the Lord. Yet, if I hoard that way, I'll be a pauper in heaven. When I breathe my last, I will have nothing in heaven. So we should be aware of where are we storing, what are we using, how are we using our resources that God has given, and what is our account with God. Let us move forward. उनके पास खाने को कुछ नहीं था. Blessed are those that go forth hunger in this world, for they will be satisfied. यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आ रहा है, क्योंकि इन लोगों को मेरे साथ 3 दिन हो चुके हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है. और यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेज देता हूं तो वे मार्ग में ही ढेर हो जाएंगे. कुछ तो बहुत दूर से आए हैं. उसके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस जंगल में इन्हें खिलाने के लिए किसी को पर्याप्त भोजन कहाँ से मिल सकता है. फिर यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? 7. उन्होंने उत्तर दिया. फिर उसने भीड़ को धरती पर नीचे बैठ जाने की आज्ञा दी और उसने वे 7 रोटियां ली, धन्यवाद किया और उन्हें तोड़ कर बांटने के लिए अपने शिष्यों को दिया और फिर उन्होंने भीड़ के लोगों में बांट दिया. उनके पास कुछ थोड़ी मछलियां भी थी. उसने धन्यवाद करके उन्हें भी बांट देने को कहा. लोगों ने भरपेट भोजन किया और फिर उन्होंने बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके 7 टोकरियां भरी, 7 baskets full. They could collect the fallen
the leftover bread and fish. वहां कोई 4,000 पुरुष रहे होंगे। फिर यीशु ने उन्हें विदा किया और वहां तत्काल अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर दलमनुता प्रदेश को चला गया। पारसियों की चाहत यीशु कुछ अनुचित करे। फिर पारसी आए और उससे प्रश्न करने लगे। उन्होंने उससे कोई स्वर्गीय आश्चर्य चिन्ह प्रकट करने को कहा। उन्होंने यह उसकी परीक्षा, to tempt Jesus. Satan is only after tempting God and his chosen people, yet the destiny of Satan is hell. Hell is real for the Satan and its followers. लेने के लिए कहा था। तब अपने मन में गहरी आह भरते हुए यीशु ने कहा, इस पीढ़ी, ब्रूड ऑफ वाइपर्स, जनरेशन ऑफ सर्पेंट्स, इस पीढ़ी के लोग कोई आश्चर्य चिन्ह क्यों चाहते हैं? इन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। फिर वह उन्हें छोड़कर वापस नाव में आ गया और झील के परले पार चला गया। यहूदी नेताओं के विरुद्ध यीशु की चेतावनी। यीशु के शिष्य कुछ खाने को लाना भूल गए थे। एक रोटी के सिवाय उनके पास और कुछ नहीं था। यीशु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, सावधान, पारसियों और हेरोदेस के खमीर से बचे रहो। हमारे पास रोटी नहीं है। इस पर वे आपस में सोच विचार करने लगे, वे क्या कह रहे हैं। यह जानकर यीशु ने उनसे बोला, रोटी पास नहीं होने के विषय में तुम क्यों सोच विचार कर रहे हो? क्या तुम अभी भी नहीं बूझते? क्या तुम्हारी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है? तुम्हारी आंखें हैं, क्या तुम देख नहीं सकते? तुम्हारे कान हैं, क्या तुम सुन नहीं सकते? क्या तुम्हें याद नहीं जब मैंने 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियों के टुकड़े किए थे और तुमने उन्हें कितनी टोकरियों में बटोरा था? 12, उन्होंने कहा। और जब मैंने 4,000 के लिए 7 रोटियों के टुकड़े किए थे तो तुमने कितनी टोकरियां भरकर उठाई थी? 7, उन्होंने कहा। फिर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब भी नहीं समझे? अंधे को आंखें। फिर वे बेथसैदा चले गए। वहां कुछ लोग यीशु के पास एक अंधे को लाए और उससे प्रार्थना की कि वह उसे छू दे। उसने अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे गांव के बाहर ले गया। उसने उसकी आंखों पर थूका, अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, तुझे कुछ दिखता है? ऊपर देखते हुए उसने कहा, मुझे लोग दिख रहे हैं। वे आसपास चलते पेड़ों जैसे लग रहे हैं। तब यीशु ने उसकी आंखों पर जैसे ही फिर अपने हाथ रखे, उसने अपनी आंखें पूरी खोल दी। उसे ज्योति मिल गई थी। वह सब कुछ साफ साफ देख रहा था। फिर यीशु ने उसे घर भेज दिया और कहा, वहां गांव में न जाए। पतरस का कथन, यीशु मसीह है। पतरस का कथन, यीशु मसीह है। The way we read changes the meaning. पतरस का कथन, यीशु मसीह है। The testimony of Peter that Jesus is Christ. Jesus is the anointed. Jesus is the King. Jesus is God. और फिर यीशु और उसके शिष्य कैसरिया फिलिप्पी के आसपास के गांव को चल दिए। रास्ते में यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, पर कुछ लोग एलिया और दूसरे तुझे भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। फिर यीशु ने उनसे पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ?
पतरस ने उसे उत्तर दिया, तो मसीह है। फिर उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे उसके बारे में यह किसी से न कहे, और उसने उन्हें समझाना शुरू किया, मनुष्य के पुत्र को बहुत सी यातनाएं उठानी होगी, और बुजुर्ग, प्रमुख याजक तथा धर्मशास्त्रियों द्वारा वह नकारा जाएगा और निश्चय ही वह मार दिया जाएगा, और फिर तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठेगा। उसने उनको यह साफ साफ बता दिया। फिर पतरस उसे एक तरफ ले गया फिर पतरस उसे एक तरफ ले गया और झिड़कने लगा। किंतु यीशु ने पीछे मुड़कर अपने शिष्यों पर दृष्टि डाली और पतरस को फटकारते हुए बोला, शैतान, मुझसे दूर हो जा, सेटन, डिपार्ट फ्रॉम मी। तो परमेश्वर की बातों से सरोकार नहीं रखता, बल्कि मनुष्य की बातों से सरोकार रखता है। फिर अपने शिष्यों के साथ भीड़ को उसने अपने पास बुलाया और उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपना सब कुछ त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है उसे इसे खोना होगा, और जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना जीवन देगा उसका जीवन बचेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को कर सारे जगत को भी पा लेता है तो उसका क्या लाभ है? If someone gathers the whole world and loses his own soul, what does it profit for him? What is more important is saving the soul, because soul lives for eternity. We do have the soul and it need to go to its destiny, that is God. क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के बदले में जीवन नहीं पा सकता। लाइफ इज प्रेशियस एंड नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट लाइफ, एंड लाइफ कैन नॉट बी बॉट। यदि कोई इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी, जनरेशन ऑफ एडल्टरस जनरेशन, यदि कोई इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में मेरे नाम और वचन के कारण लजाता है, तो मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने परम पिता की महिमा सहित आएगा तो वह भी उसके लिए लजाएगा। If anyone is ashamed of my name amidst this adulterous generation, I will also be ashamed of that person when I come with my kingdom. No offense. मार्कुस अध्याय 9। और फिर उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यहाँ जो खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया देखने से पहले मृत्यु का अनुभव नहीं करेगा। मूसा और एलिया के साथ यीशु का दर्शन देना। केवल 6 दिन बाद यीशु केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर गया। This is the Mount of Transfiguration. By God's grace, the preacher, that is me, is given the unique privilege to visit this Mount of Transfiguration. It's a beautiful journey. It is here where Jesus transfigures himself, and the disciples of Jesus Christ were astonished to see the brightness of his garments and the presence of Moshe and Elia with Jesus Christ to strengthen Jesus in his mission of crucifixion. वहां उनके सामने उसने अपना रूप बदल दिया। रूप बदलना मीन्स ट्रांसफिगरेशन। उसके वस्त्र चमचमा रहे थे, एकदम उजले सफेद, एकदम उजले सफेद। धरती पर कोई भी धोबी जितना उजला नहीं धो सकता, उससे भी अधिक उजले सफेद। एलियास और मूसा भी उसके साथ प्रकट हुए। वे यीशु से बात कर रहे थे। तब पेत्रस बोल उठा और उसने यीशु से कहा, हे रब्बी, यह बहुत अच्छा हुआ कि हम यहाँ हैं। हमें 3
मंडप बनाने दे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियास के लिए। पतरस ने यह इसलिए कहा कि वह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कहे। वे बहुत डर गए थे। तभी एक बादल आया और उन पर छा गया। बादल में से यह कहते एक वाणी निकली, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और तत्काल उन्होंने तब चारों ओर देखा तो यीशु को छोड़कर अपने साथ किसी और को नहीं पाया। जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि उन्होंने जो कुछ देखा है उसे वे तब तक किसी को न बताए जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे। सो उन्होंने इस बात को अपने भीतर ही रखा, किंतु वे सोच विचार कर रहे थे कि मरकर जी उठने का क्या अर्थ है। What does resurrection means? What does rising from the dead means? फिर उन्होंने यीशु से पूछा, धर्मशास्त्री क्यों कहते हैं कि एलियास का पहले आना निश्चित है? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, सब बातों को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए निश्चय ही एलियास पहले आ गया, निश्चय ही एलिया पहले आएगा। एलिया means the man with the spirit of Elijah, that is John the Baptist। किंतु मनुष्य के पुत्र के बारे में यह क्यों लिखा गया है कि उसे बहुत सी यातनाएं झेलनी होगी और उसे घृणा, हेट्रेड के साथ, we see hatred all around, घृणा के साथ नकारा जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, एलिया आ चुका है और उन्होंने उसके साथ जो कुछ चाहा किया, ठीक वैसा ही जैसा उसके विषय में लिखा हुआ है। Here Jesus Christ is referring to John the Baptist when he is telling that Elijah has already come। बीमार लड़के को चंगा करना। जब वे दूसरे शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनके आसपास जमा एक बड़ी भीड़ देखी। उन्होंने देखा कि उनके साथ धर्मशास्त्री विवाद कर रहे हैं और जैसे ही सब लोगों ने यीशु को देखा वे चकित हुए और स्वागत करने उसकी तरफ दौड़े। फिर उसने उनसे पूछा, तुम उनसे किस बात पर विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया था। उस पर एक दुष्टात्मा सवार है जो उसे बोलने नहीं देती। जब कभी वह दुष्टात्मा इस पर आती है, इसे नीचे पटक देती और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है और यह दांत पीसने लगता है और अकड़ जाता है। मैंने तेरे शिष्यों से इस दुष्टात्मा को बाहर निकालने की प्रार्थना की, किंतु वे उसे नहीं निकाल सके। फिर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, ओ अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? लड़के को मेरे पास ले आओ। तब वे लड़के को उसके पास ले आए और जब दुष्टात्मा ने यीशु को देखा तो उसने तत्काल लड़के को मरोड़ दिया। वहां धरती पर जा पड़ा और चक्कर खा गया। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। तब यीशु ने उसके पिता से पूछा, यह ऐसा कितने दिनों से है? पिता ने उत्तर दिया, यह बचपन से ही ऐसा है। दुष्ट आत्मा इसे मार डालने के लिए कभी आग में गिरा देती है तो कभी पानी में। क्या तू कुछ कर सकता है? हम पर दया कर हमारी सहायता कर। यीशु ने उससे कहा, तूने कहा, क्या तू कुछ कर सकता है? विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। तुरंत बच्चे का पिता चिल्लाया और बोला, मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव। मेरे अविश्वास को हटा। यीशु ने जब देखा कि भीड़ उन पर छड़ी चली आ रही है, उसने दुष्टात्मा को ललकारा और उससे कहा, ओ बच्चे को बहरा गूंगा कर देने वाली दुष्टात्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि इसमें से बाहर निकल आ और फिर इसमें दोबारा प्रवेश मत कर। तब दुष्टात्मा चिल्लाई, बच्चे पर भयानक दौरा पड़ा और वहां बाहर निकल गई। बच्चा मरा हुआ सा दिखने लगा। बहुत लोगों ने कहा वह मर गया। फिर यीशु ने लड़के को हाथ से पकड़कर उठाया और खड़ा किया। वह खड़ा हो गया। इसके बाद यीशु अपने घर चला गया। अकेले में उसके शिष्यों ने उससे पूछा, हम इस दुष्टात्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल सके? इस पर यीशु ने उनसे कहा, ऐसी दुष्टात्मा प्रार्थना के बिना बाहर नहीं निकाली जा सकती है। यहाँ प्रार्थना माने उपवास प्रार्थना के बिना बाहर नहीं
निकाली जा सकती है। अपनी मृत्यु के संबंध में यीशु का कथन। फिर उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया और जब वे गलील होते हुए जा रहे थे तो वह नहीं चाहता था कि वे कहाँ हैं इसका किसी को भी पता चले। तो वह नहीं चाहता था कि वे कहाँ हैं इसका किसी को भी पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा था। शिक्षा मीन्स नॉट पनिशमेंट, ट्रेनिंग। हियर शिक्षा मीन्स ट्रेनिंग नॉट पनिशमेंट। उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के ही हाथों धोखे से पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे। मारे जाने के 3 दिन बाद वह जी उठेगा। पर वे इस बात को समझ नहीं सके और यीशु से इसे पूछने में डरते थे, सबसे बड़ा कौन है। फिर वे कफरनहूम कफरनहूम आए। यीशु जब घर में था उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर सोच विचार कर रहे थे। पर वे चुप रहे, क्योंकि वे राह चलते आपस में विचार कर रहे थे कि सबसे बड़ा कौन है। सो वहां बैठ गया। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई सबसे बड़ा बनना चाहता है तो उसे निश्चय ही सबसे छोटा होकर सबका सेवक बनना होगा। और फिर एक छोटे बच्चे को लेकर उसने उनके सामने खड़ा किया। बच्चे को अपनी गोद में लेकर वह उनसे बोला, मेरे नाम में जो कोई इनमें से किसी भी एक बच्चे को अपनाता है वह मुझे अपना रहा है, और जो कोई मुझे अपनाता है न केवल मुझे अपना रहा है बल्कि उसे भी अपना रहा है जिसने मुझे भेजा है। जो हमारा विरोधी नहीं है हमारा है। यूहन्ना ने यीशु से कहा, हे गुरु, हमने किसी को तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं बाहर निकालते देखा है। हमने उसे रोकना चाहा क्योंकि वह हम में से कोई नहीं था। किंतु यीशु ने कहा, उसे रोको मत, क्योंकि जो कोई मेरे नाम से आश्चर्य कर्म करता है वह तुरंत बात मेरे लिए बुरी बातें नहीं कह पाएगा। वह जो हमारे विरोध में नहीं है हमारे पक्ष में है। जो इसलिए तुम्हें एक कटोरा पानी ही पिलाता है कि तुम मसीह के हो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, उसे इसका प्रतिफल मिले बिना नहीं रहेगा। Whoever offers a cup of water to you in the name of Jesus Christ, that is me, in the name of Jesus Christ, surely they will not forego their reward. और जो कोई इन नन्हे अबोध बच्चों में से किसी को जो मुझ में विश्वास रखते हैं पाप के मार्ग पर ले जाता है तो उसके लिए अच्छा है कि उसकी गर्दन में एक चक्की का पाट बांध कर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझ से पाप करवाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना कहीं अच्छा है, बजाय इसके कि 2 हाथों वाला होकर नरक में डाला जाए, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती। यदि तेरा पैर तुझे पाप की राह पर ले जाए उसे काट दे। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना कहीं अच्छा है, बजाय इसके कि 2 पैरों वाला होकर नरक में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल दे। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कहीं अच्छा है, बजाय इसके कि 2 आंखों वाला होकर नरक में डाला जाए, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते और जहाँ की आग कभी बुझती नहीं, where the fire will not be quenched and the worm will not die. Jesus Christ is referring to a place called hell, a place of torment prepared for Satan and all its angels. हर व्यक्ति को आग पर नमकीन बनाया जाएगा। नमक अच्छा है, किंतु नमक यदि अपना नमकीनपन ही छोड़ दे तो तुम उसे दोबारा नमकीन कैसे बना सकते हो। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ शांति से रहो।
आज का बाइबल पठन समाप्त हो गया। वालेकुम अस्सलाम।